Hello friends. So this is your educator Vibhu Prasad Rathore from Biology by Vibhu, and in this video I have discussed about the structure of microspores or the pollen grain, how it developed in the pre-pollination stage and how it will develop in the post-pollination phase. This video is a sequence video from the previous video I have uploaded. If you have not seen the previous video, then please go through that video. I have given the link in the description. Please go through that video first, then come to this video. You will get the more details from this video. This video is extremely important for you for the better understanding of the microsporogenesis, the structure of pollen grain and how it develops from the pre-pollination stage to the post-pollination stage. So go through this video, like this video, share this video and subscribe the channel. Thank you. So from the last video that I have uploaded, the microsporogenesis, I have discussed how the microspores are formed, how they converted to pollen grain, what is the detail about anther wall and the details. But in today's class we will discuss about the structure of microspores or the pollen grain. Then we will discuss the pre-pollination development and the post-pollination development. These are the contents for today's session. The first one will be structure of a pollen grain or the microspore. The second one will be the pre-pollination development, and the third one will be the post-pollination development. So let us start from the first slide, that is pollen grain or microspore. So in this slide we are going to discuss about the structure of pollen grain. तो पोलन ग्रेन जो होता है उसका कैसे स्ट्रक्चर होता है, तो देखिए यहाँ पर एक साइड में मैंने एक पिक्चर दिया है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पोलन ग्रेन होता है इसका बहुत सारा शेप होता है या फिर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. द माइक्रोस्पोर्स आर हैप्लॉइड. सबसे पहले ये जो माइक्रोस्पोर्स या फिर पोलन ग्रेन है ये हैप्लॉइड है, यूनिन्यूक्लिएट. इसमें एक सिंगल न्यूक्लियस होता है. माइन्यूट स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स एज अ रिजल्ट ऑफ मेयोसिस इन माइक्रोस्पोर मदर सेल. हमने ये पिछले वाले स्लाइड में भी देखा था कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं वही माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मेयोसिस करके माइक्रोस्पोर्स यानी कि पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं. शेप आर वेरी फ्रॉम spherical to globose to polyhedral, so many types. You can see the shapes there. Okay, ये spherical होते हैं, globose होते हैं, polyhedral होते हैं. Each pollen grain of angiosperm has two wall, that is vegetative cell and the generative cell. Okay, अगर हम देखें एक pollen grain के अंदर दो cells मौजूद होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल और दूसरा होता है जनरेटिव सेल. लेकिन ये कब फॉर्मेशन होता है, जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट करना शुरू करता है, उससे पहले नहीं. उससे पहले सिंगल सेल होता है. आप ये साइड में जो राइट साइड में जो पिक्चर दिया गया है आप वहां पर देख सकते हैं जो माइटोसिस हुआ है वो स्टेज तक एक ही सेल होता है. लेकिन माइटोसिस के बाद फिर एक और माइटोसिस होगा जहां पर आप एक जेनरेटिव सेल पाएंगे, एक वेजिटेटिव सेल पाएंगे और उस वेजिटेटिव सेल को आप ट्यूब सेल भी कह सकते हैं. क्यों उसको ट्यूब सेल कहते हैं वो हम आगे देखेंगे. Also it has a distal aperture called the germ pore on the wall of the pollen grain for germination. देखिए ये जो पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है उसके लिए एक जर्म पोर का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है. क्यों होता है वो भी हम आगे देखेंगे. The wall is collectively called sporoderm. देखिए जो पोलन ग्रेन का जो वाल होता है उसमें दो वाल आते हैं, है ना. ये सबसे पहले देखिए यहाँ पर अगर मैं एक डायग्राम लेकर आपको दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पर ये दो वाल का जिक्र किया है, एक्साइन और इंटाइन. ये दो वाल होते हैं, ठीक है. एक्साइन है जो आउटर वाल है, ये वाला हिस्सा जिसको हम एक्साइन कहते हैं. और जो इंटाइन होता है, इंटाइन आप देख सकते हैं ये होता है इंटाइन. अगर मैं कलर चेंज कर दूं तो आप देखिए ये जो इसके नीचे जो वाला लेयर होता है ये जिसको मैंने येलो कलर किया है यही है इंटाइन, ठीक है. तो वो जो बाहर आता है उसको हम एक्साइन कहते हैं और जो अंदर है उसको हम इंटाइन कहते हैं, ठीक है. और उसको हम कलेक्टिवली स्पोरोडर्म कहते हैं. द wall is collectively the two major wall called sporoderm.
जिसका आउटर वॉल उसको हम एक्साइन कहते हैं और जो इनर वॉल होता है उसको हम इंटाइन कहते हैं, व्हिच इज चीफली मेड अप ऑफ पेक्टोसेलुलोज। अगर आप देखें, ये देखिए यहाँ पर जो एक्साइन है वो एक्साइन स्पोरोपोलेनिन से फॉर्मेशन हुआ है और जो इंटाइन है वो पेक्टोसेलुलोज से फॉर्मेशन हुआ है। दो तरह के सब्सटेंस होते हैं। जो स्पोरोपोलेनिन होता है वो टैपेटम से फॉर्मेशन किया जाता है और जो पेक्टोसेलुलोज है वो इंटाइन के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वही से फॉर्मेशन होता है। द एक्साइन इज ए हार्ड एंड रफ लेयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। रिमेंबर, जो स्पोरोपोलेनिन होता है वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है एक पोलन ग्रेन में और उसी के कारण जो एक्साइन होता है वो हार्ड एंड रफ होता है, ठीक है, which protect the male gametophyte till it reaches the stigma। जब तक ये स्टिग्मा में नहीं पहुंच जाता, ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर आके स्टिग्मा के ऊपर रह गया, ठीक है। तो जब तक ये, हाँ मैं एक डायग्राम में दिखा देता हूँ, ये देखिए जब तक ये ऐसे आके स्टिग्मा के ऊपर नहीं गिरेगा तब तक इसको प्रोटेक्शन देता है ये जो स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। द इंटाइन इज ए थीन एंड स्मूथ लेयर। जो इंटाइन होता है वो स्मूथ लेयर होता है which produce the pollen tube after germination on the stigma। जब स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेशन होगा तब पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा। द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड पैलिनोलॉजी और इस पैलिनोलॉजी को हम बहुत सारे तरह तरह के काम में लेते हैं, जैसे कि इवोल्यूशन को स्टडी करना हो या फिर प्लांट का कैरेक्टर के बारे में स्टडी करना हो, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिर आर्कियोलॉजी, कुछ भी स्टडी करना हो तो हम पोलन ग्रेन को काम में लेते हैं। फिर आता है सेकेंड फेज जिसको हम कहते हैं प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट। ये प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट को जाने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये पॉलिनेशन क्यों होता है। द अल्टीमेट गोल ऑफ डिस्पर्स्ड पोलन ग्रेन इज टू रीच द स्टिग्मा। जो पोलन है उसका अल्टीमेट गोल क्या होता है? आंथर से निकलेगा और स्टिग्मा में जाके गिरेगा, यही इसका रोल होता है। ऑफ कंपैटिबल प्लांट, यानी कि अगर एक प्लांट से निकल रहा है, देखिए यहां पर अगर इस प्लांट से निकल रहा है तो ये आके यहां पर नहीं गिरेगा, इसको उसी का ही कंपैटिबल फ्लावर ढूंढना पड़ेगा और अगर तब जाके इसमें फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होगा। ये जो डायग्राम्स दिए गए हैं ये सब आप देख सकते हैं, हनी बीज आके पॉलिनेशन कर रहे हैं। दैट मीन्स हनी बी इज द पॉलिनेटिंग एजेंट्स। मतलब कि कुछ कुछ प्लांट्स में देखिए यहाँ पर हमिंग बर्ड भी पॉलिनेशन कर रहा है। तो पॉलिनेशन के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले एक एजेंट्स चाहिए, ठीक है। हर पॉलिनेशन में एजेंट नहीं चाहिए। पॉलिनेशन दो तरह का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। उसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसको हम पॉलिनेशन कह देंगे। तो वहां से जाने से पहले फिर यहाँ पर देख लीजिए, द अल्टीमेट गोल ऑफ डिस्पर्स्ड पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन होता है उसका अल्टीमेट गोल क्या है? उसका अल्टीमेट गोल ये है कि वो स्टिग्मा में जाके गिरेगा और वो जो स्टिग्मा में जाके गिरेगा उसके साथ वो इसका कंपैटिबिलिटी होना चाहिए। मतलब कि अगर ये एक प्लांट है और ये एक दूसरा प्लांट है तो यहाँ पर जो भी कंपैटिबिलिटी इसके साथ होना चाहिए, मतलब कि ये दो सेम स्पेसीज का होना चाहिए, नहीं तो ये प्रोसेस नहीं होगा और इसके बाद फर्टिलाइजेशन शुरू होगा, ठीक है। फिर आता है प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट। मतलब कि जो पॉलिनेशन हो रहा है यहाँ पर जो पॉलिनेशन हो रहा है, ये पॉलिनेशन के पहले क्या होता है? तो पॉलिनेशन के पहले क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले इसी स्टेज में हम पोलन ग्रेन को देखेंगे। ये है नंबर 1 स्टेज, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये है नंबर 1 स्टेज। Microspores start germination in situ. That means while enclosed within the microsporangium or the pollen sac. जब तक माइक्रोस्पोरांजियम या फिर पोलन सैक के अंदर है वहीं से ये जर्मिनेशन का प्रोसेस शुरू कर देता है। बिफोर फॉर्मेशन ऑफ द 2 मेजर सेल्स, यहाँ पर 2 मेजर सेल फॉर्मेशन होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक होता है ट्यूब सेल और वेजिटेटिव सेल, दूसरा होता है जेनरेटिव सेल। ये सेल्स फॉर्मेशन होने से पहले क्या होता है? ए लार्ज सेंट्रली प्लेस्ड वैक्यूल इज फॉर्म्ड। इसके अंदर एक वैक्यूल फॉर्मेशन हो जाता है। देन माइटोसिस टेक्स प्लेस बाय फॉर्मिंग द स्मॉल जेनरेटिव सेल एंड द लार्ज वेजिटेटिव सेल। एक बार वैक्यूल फॉर्मेशन होने के बाद ये सेल माइटोसिस करता है और इसमें 2 अनइक्वल सेल्स फॉर्मेशन होता है। जो स्मॉल सेल है उसको हम जेनरेटिव सेल कहते हैं और जो लार्ज सेल है उसको हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं।
ए लेयर ऑफ कैलोज स्टार्ट्स डिपोजिटेड अराउंड द जेनरेटिव सेल। जो जेनरेटिव सेल होता है उसके जो देखिए यहाँ पर उसके सराउंडिंग में देखें तो उसके चारों ओर कैलोज वॉल फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो कैलोज वॉल फॉर्मेशन होता है वो क्यों फॉर्मेशन होता है ना, इसके बाद ये जो माइक्रोस्पोर का जो जेनरेटिव सेल है ये वेजिटेटिव सेल के अंदर घुस जाएगा। A layer of callus starts deposited around the generative cell and the generative cell detach from the microspore wall and moves to the larger vegetative cell and move freely। वो उसके अंदर चला जाता है और उसके अंदर ये फ्रीली घूमता है। In majority of angiosperm the pollen grains are shed। हमने जो dehiscence के बारे में पढ़ा था तो वो dehiscence कब होता है, इसी सेल स्टेज में, मतलब कि यही इसी सेल स्टेज में ये डेहिस करता है। और ये जो ई का जो सेल दिखाया गया है या फिर डायग्राम दिखाया गया है ये स्टिग्मा के ऊपर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहीं तक होता है और इसके बाद डेहिसेंस होता है। आर सेड फ्रॉम द आंथर एट दिस बाइसेल स्टेज। यही बाइसेल स्टेज में यहां से वो ड्रॉप करेगा। फिर आता है पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट में आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो जो पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट है उसमें क्या होगा, द डिस्पर्स्ड पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा बाय ए प्रोसेस कॉल्ड पॉलिनेशन। एक पॉलिनेशन के प्रोसेस में ये जो पोलन ग्रेन होता है वो यहाँ पर आके स्टिग्मा के ऊपर, ये जो पोर्शन है, इस जो रेड वाला पोर्शन मैंने दिखाया है ये होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा के ऊपर पोलन आकर गिरेगा और उस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहेंगे। ऑन द स्टिग्मा द पोलन स्पोरोडर्म ऑब्जर्व्स वाटर एंड स्वेल। वो जो पोलन का जो स्पोरोडर्म होता है, मतलब कि इसका जो वाल होता है वो वाटर को ऑब्जर्व करना शुरू करता है और स्वेलिंग करता है। लेकिन इससे पहले एक और भी स्टेप होता है जिसको हम पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं। द वेजिटेटिव सेल इनलार्जेस बाय द ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड वाटर। जो वेजिटेटिव सेल है वो क्या करेगा, यहाँ पर हाइड्रेशन दिखाया गया है, ये देखिए यहाँ पर हाइड्रेशन करके ये पोलन इंक्रीज करेगा, अपने साइज में इंक्रीज करेगा। एंड प्रोट्रूड्स थ्रू द, देखिए द वेजिटेटिव सेल इनलार्जेस बाय द ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड वाटर। एक पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होगा। वो इंटरेक्शन क्यों हो रहा है ना, वो इंटरेक्शन हो रहा है पोलन को स्टिग्मा के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए। एक बार कंपैटिबल हो गया फिर क्या होगा, जो वेजिटेटिव सेल है वो इनलार्ज होगा, वो वाटर ऑब्जर्व करेगा और साइज में थोड़ा बढ़ जाएगा। एंड प्रोट्रूड्स थ्रू द जर्मपोर। देखिए इसके अंदर जब साइज बढ़ेगा यहाँ पर तो ये क्या करेगा ना, ये वॉल के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा जिससे कि वो फट जाएगा, जो एक्साइन है वो रप्चर कर जाएगा। एंड द प्रोट्रूड्स थ्रू द जर्मपोर बाय रप्चरिंग इट। जो जर्मपोर होता है उस जर्मपोर को ये रप्चर करेगा और वहां से ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। द इंटाइन ड्यू टू दिस प्रेशर कम्स आउट एज अ पोलन ट्यूब। जो देखिए जो वेजिटेटिव सेल है वो इंटाइन को लेकर बाहर आ जाएगा और वो एक पोलन ट्यूब की तरह होगा, which penetrates through the stigma to the style up to the ovary। जो कि क्या करेगा ना, स्टिग्मा से लेकर स्टाइल के अंदर अंदर जाते हुए वो ओवरी की ओर जाएगा, ठीक है। यही होता है प्रोसेस जिसको हम फर्टिलाइजेशन में देखेंगे आगे, जब हम फर्टिलाइजेशन डिस्कस करेंगे वहां पर हम इसको देखेंगे। which penetrates through the stigma to the style up to the ovary। the pollen tube while moving through। देखिए जब ये पोलन ट्यूब, ये जो यही हिस्सा को हम पोलन ट्यूब कहते हैं, ये देखिए इस वाला हिस्सा को हम पोलन ट्यूब कहते हैं। जब ये पोलन ट्यूब इसके अंदर जा रहा है तभी एक और प्रोसेस होगा। इसके अंदर हमें पता है कि एक सेल है जिसको हम जेनरेटिव सेल कहते हैं। वो जेनरेटिव सेल क्या करेगा ना, इट विल पासेस टू द पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब के अंदर घुस जाएगा एंड बाय माइटोसिस इट प्रोड्यूसेस 2 मेल गैमेटोफाइट। ये 2 मेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। इसके अंदर, जब इसके अंदर ये जो जेनरेटिव सेल है जब ये इसके अंदर आ जाएगा तभी ये 2 सेल फॉर्मेशन करेगा। ऐसे देखिए आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, देखिए ये 2 मेल गैमेट फॉर्मेशन कर चुका है और इससे पहले ये जो कैलोज प्लॉक्स है ये फॉर्मेशन होगा। ये कैलोज प्लॉक क्यों फॉर्मेशन हो रहा है, देखिए callose plugs are formed in the older part to provide a proper one-way passage to the male gamete। देखिए जो मेल गैमेट है उसको आगे जाने के लिए, प्रॉपर तरीके से आगे जाने के लिए यहाँ पीछे पीछे कैलोज प्लग्स फॉर्मेशन होगा जो कि ये चैनल को ब्लॉक कर देगा।
तो ये अभी पीछे नहीं आ सकते, ये आगे ही जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट होता है। तो जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, अगर इसको हम समराइज करें तो सबसे पहले ये शुरू कहाँ से हुआ ना, ये शुरू हुआ आंथर के अंदर। देखिए, ये सबसे पहले शुरू हुआ आंथर के अंदर, फिर आंथर के अंदर ये माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्मेशन कर दिया। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल हुआ उससे पोलन ग्रेन फॉर्मेशन हुआ, फिर पोलन ग्रेन के अंदर ये सब डेवलपमेंट हुआ और पोलन ग्रेन जाके पॉलिनेशन किया, और पॉलिनेशन के बाद ये सारा का सारा डेवलपमेंट प्रोसेस हो गया। तो इसी को हम मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट कहते हैं, जो कि आपके क्लास 12 में लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कई कई बोर्ड में, जैसे कि हमारा ओडिशा में CHSE को आप मान लो, या फिर CBSE में भी देख लो। तो उसमें क्या होगा ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पर इंक्लूड होगा, जो कि पिछले वाला स्लाइड में भी था और इस वाला स्लाइड में भी है। तो आपको दोनों का दोनों वीडियो देखना पड़ेगा। इसके बारे में डिटेल जानने के लिए आपको दोनों वीडियो देखना पड़ेगा, पहले इससे पहला वाला वीडियो, फिर ये वीडियो, तभी जाके आप इस पूरा का पूरा प्रोसेस को समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।